السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملک کے کروڑوں ٹیکس دہندگان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مودی حکومت نے انہیں بڑی راحت دی ہے۔ اس کے تحت ہر ٹیکس دہندے کی 1 لاکھ روپے تک کی زیر التوا ٹیکس ڈیمانڈ کو معاف کر دیا جائے گا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے چھوٹے ٹیکس کے مطالبات واپس لینے کے لیے فی ٹیکس دہندہ 1 لاکھ روپے کی حد مقرر کی ہے۔ یہ فیصلہ عبوری بجٹ 2024 میں براہ راست ٹیکس کے مطالبات واپس لینے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکاری حکم کے ذریعے سال 2015-16 کے لیے ٹیکس کی مانگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے واپسی کے لیے قواعد واضح کیے ہیں۔ اس سے قبل ٹیکس دہندگان کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2024-25 کے عبوری بجٹ میں اعلان کیا تھا کہ حکومت نے ڈائریکٹ ٹیکس کے معاملے میں پرانے متنازع ٹیکس مطالبے سے عوام کو ریلیف دینے کی تجویز پیش کی۔ اس کے تحت مالی سال 2009-10 تک 25,000 روپے تک اور 2010-11 تک 10,000 روپے تک کے متنازع انکم ٹیکس ڈیمانڈ نوٹس واپس لے لیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی توجہ ٹیکس دہندگان کے لیے خدمات کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ توقع ہے کہ اس قدم سے ٹیکس دہندگان کو فائدہ ہوگا اور مالی بوجھ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2024-25 کی متنازع براہ راست ٹیکس کے مطالبات کو واپس لینے سے 1 کروڑ ٹیکس دہندگان کو فائدہ ہوگا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر میں کئی ٹولیاں PDS چاول کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، مگر ان میں 3 اہم ٹولیاں سرگرم ہیں۔ یہ ٹولیاں روزانہ راشن شاپ سے چاول خرید کر بڑے پیمانے پر بھاری دام پر فروخت کرنے میں ملوث بتائی جاتی ہیں اور غیر قانونی طور پر 3 ٹولیاں روزانہ لاکھوں روپے کی کمائی کر رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں ٹولیاں ایسٹ زون ٹاسک فورس امبرپیٹ کے کانسٹیبل کی نگرانی میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے رہی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق امبرپیٹ علاقے کا ایک سود خور سرمایہ لگاتا ہے اور سرغنہ رحمان مبینہ طور پر راشن شاپس ڈیلر سے چاول خرید کر کاٹھدان کے کاروباریوں کو سپلائی کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ چاول اکرم کو فروخت کرتا ہے، اس کے علاوہ ایوب کو فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹولیاں دیگر ریاستوں کو بھاری قیمت میں چاول فروخت کرتی ہیں۔ شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں راشن شاپ سے کم قیمت پر چاول خرید کر بھاری قیمتوں میں فروخت کیا جا رہا۔ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ راشن شاپس پر کڑی نظر رکھے اور ضرورت پڑنے پر ان شاپس کو چاول سربراہ کرنا بند کر دے، کیونکہ صارفین کی بڑی تعداد راشن شاپ سے چاول نہیں خریدتی ہے۔ سول سپلائز کی لاپرواہی اور راشن شاپس کی مؤثر تنقیح نہ کرنے علاوہ ازیں ویجیلنس کے دھاوے نہ ہونے کی وجہ سے راشن شاپس ڈیلرز کھلے عام PDS چاول فروخت کر رہے اور یہ غیر قانونی کاروبار ایسٹ زون ٹاسک فورس کے ایک کانسٹیبل جو امبرپیٹ علاقہ دیکھتا ہے، اس کی نگرانی میں کھلے عام کئی برسوں سے جاری ہے۔ مبینہ طور پر اوپر سے نیچے سب کو معمول ہے۔ اب یہ غیر قانونی کاروبار اتنا پھیل چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کاروبار امبرپیٹ، چادر گھاٹ کے علاوہ مشیرآباد، وارس گوڑہ، ٹپا چبوترا، گولکنڈہ، فصلانسر، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم، چندرائن کٹا، یاقوت پورہ، عیدی بازار، اولڈ ملک پیٹ، بڑا بازار، دبیر پورہ اور کئی علاقوں کے علاوہ شہر کے نواحی علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ اس کا مرکز میلاردیو پلی کے ٹاٹا نگر میں واقع ہے اور تمام پولیس اسٹیشنوں کے متعلقہ عہدیدار مبینہ طور پر اپنا حصہ لینے کے بعد ان اسمگلرز کو کھلی چھوٹ دے رکھے ہیں۔ سڑک سے ان کے ٹرک گزرتے ہیں مگر نہ پولیس اور نہ ہی سول سپلائز کے عہدیدار ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس غیر قانونی کاروبار سے عوام کو ہی نہیں بلکہ ریاستی حکومت کو بھی بھاری نقصان ہو رہا۔ حکومت غریب عوام کے لیے PDS رائس فراہم کر رہی، لیکن یہ ٹولیاں منظم انداز میں چاول کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ یہ عوام کا حق مار رہے۔
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मूसा रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट को बाउजलत मुमकिन शुरू करने की मशक मुकम्मल करें। चीफ मिनिस्टर ने नानक रामगुड़ा में वाक़े HMDA के दफ्तर में मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए खिताब किया था। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को दरियाए मूसा के हुदूद के मकामात और दीगर अहम तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान इजलास में ओहदेदारों से कहा गया कि वो कामों के आगाज से कबल मूसे के मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाएं, रिवर के ज़िमन में साफ सुथरा रखें और रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ऐसा तरक्याती मनसूबा तैयार करें जिसमें शहर में दरिया के साथ मौजूद तारीखी ढांचों को आपस में मरबूत करने को यकीनी बनाएं। उन्होंने मशवरा दिया कि प्रोजेक्ट के कामों को सरहद के साथ अंजाम देने के लिए कामों को ओहदेदारों में तकसीम करें। रियासती हुकूमत ने मूसा रिवर फ्रंट के तरक्याती कामों को बड़े पैमाने पर शुरू करने का अहद किया है। इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अज्जा होंगे जो शहर के मशरकी और मगरबी हिस्सों को आपस में मरबूत करेंगे। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा डेंगू से मुतासर हो गई हैं। हाल ही में इख्तिताम पजीर असम्बली इजलास के मौके पर वो डेंगू से मुस्बित पाई गई। तकरीबन एक हफ्ते से वो डेंगू के बुखार से मुतासर हैं, जिसकी वजह से वो अवाम के दरमियान नहीं आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो मेडारम जात्रा तक रोबा सेहत हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने उनके जरूरी मुआयने किए, जिस पर पता चला कि वो डेंगू से मुतासर हो गई हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। నాకు హెల్త్ బాగోలేదు, డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది. అందువల్ల నీరసంగా ఉంది, బయటకు రాలేక ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. గ్లూకోజులు ఎక్కుతూ ఉన్నాయి, యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. शहर हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में मीर चौक पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम चरौकी मस्जिद के करीब किया गया, जहां पर बिना लाइसेंस के और बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को रोककर सीज किया गया और कई गाड़ियों पर चालानात भी आयद किए गए। तेलंगाना के नारसिंगी की आउटर रिंग रोड से एक तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। गच्चीबौली से शमशाबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। बादजा मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना में निजामाबाद के बीजेपी रुकन लोकसभा डी अरविंद के खिलाफ पैम्फलेट तकसीम किए गए हैं। ये पैम्फलेट अखबारात में भी चस्पा करते हुए तकसीम किए गए हैं। उनमें कहा गया है कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं और वो किसी से बात नहीं करते। पैम्फलेट में कहा गया है कि डी अरविंद जैसा घमंडी रुकन पार्लियामेंट नहीं चाहिए। ये पैम्फलेट जगतियाल जिले के मिटपल्ली गाँव में तकसीम किए गए, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। इन पैम्फलेट पर प्रिंटर का नाम और दीगर तफसीलात नहीं है। इन पैम्फलेट को किसने तकसीम किया है, इस पर हुनूस तजस्सुस बरकरार है। तेलंगाना के कुंभ मेले समझे जाने वाली मेडारम यात्रा के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। बुध से इस माह की 24 तारीख तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा में शिरकत करने वालों की सहूलत के लिए TSRTC 6000 खुसूसी बसें चला रही। उन्होंने कहा है कि रियासत के तमाम अजला से बसें पहले ही मेडारम जा चुकी हैं। वरंगल, खम्मम, करीमनगर और आदिलाबाद अजला में 51 कैंप कायम किए गए हैं, जहां से ये खुसूसी बसें मेडारम तक चलाई जाएंगी। RTC 2 साल में एक मरतबा होने वाली इस यात्रा के सिलसिले में महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत पहुंचाने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की हिदायत के मुताबिक ये बसें चलाई जा रही।
रियासत के सरकारी महकमों और दफातर में आज रिश्वत का चलन आम हो गया है। किसी भी दफ्तर में रिश्वत के बगैर फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक मुंतकिल नहीं की जाती है। जब तक रिश्वत नहीं दी जाती तब तक फाइल उसी दफ्तर के टेबल पर गर्द में लपटी हुई रहती है। साबिक सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की जानिब से एसीबी सरबराह की हैसियत से जायजा हासिल करने के बावजूद सरकारी दफातर में रिश्वत के चलन में कोई कमी नहीं आई। अवाम को सीवी आनंद से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अब भी रिश्वत के चलन को बहुत हद तक कम कर देंगे, मगर अब तक हौसला अफजा नताइज सामने नहीं आए हैं। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में रोजाना करोड़ों रुपए की रिश्वत तलब वो कबूल की जाती है। बताया जाता है कि महकमे आरटीए में बगैर रिश्वत के छोटा काम भी नहीं होता। मुतल्लिका ओहदेदार रिश्वत कबूल करने के लिए दरमियानी अफराद की खिदमात हासिल कर चुके हैं। दरमियानी शख्स को पहले सेल फोन पर मुतल्लिका ओहदेदार को फला शख्स के बारे में बताते हैं और उनसे रकम का मुतालबा करने को कहते हैं। जब मजबूर वो लाचार शख्स काम के लिए दरमियानी फर्द के पास पहुंचता है और मतलूबा रकम हवाले कर देता है। सरकारी मुलाजमीन में एसीबी का खौफ खत्म हो गया है। एसीबी के मुलाजमीन ऐसा लगता है कि खानापुरी के लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस, महकमे पुलिस, सेहत आमा और रेवेन्यू, जंगलात और दीगर महकमों की सूरत हाल भी बेहतर नहीं। रजिस्ट्रेशन दफ्तर में रजिस्ट्रार से चपरासी तक रिश्वत तलब वो कबूल करता है। आज के दौर में सरकारी मुलाजमीन ही सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, मगर इसके बावजूद रिश्वत ना लें तो ऐसा दिखाई देता है कि उनका हाजमा खराब हो जाता है। सीवी आनंद आईपीएस से अपील की जाती है कि वो सरकारी दफातर को रिश्वत से पाक बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशियों के लिए सऊदी अरब की जानिब से उम्रे की मजीद सहूलियात का ऐलान किया गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक हज व उम्रा के वजीर तौफीकुल अरबिया की जानिब से यूएई से हज और उम्रा ज़ायरीन की तादाद को बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद सहूलियात में इजाफा कर दिया गया है। अल-नुस्क हज प्लेटफॉर्म के हतमी बयान के मुताबिक अल अरबिया का कहना है कि यूएई के बाशिंदे अब उम्रे के लिए मल्टी एंट्री इलेक्ट्रॉनिक वीजा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ममलिकत में सालाना 90 दिन तक सुकूनत इख्तियार की जा सकती है। अल रबिया ने दुबई से मदीना मुनव्वरा तक सऊदी एयरलाइन की परवाजों के आगाज से मुतल्लिक भी आगाही फराहम की कि हफ्तावार 3 परवाजें पेश की जा रही। रमजानुल मुबारक के लिए रोजाना 1 परवाज बढ़ा दी जाएगी। मजीद बराए दुबई और जिद्दा के दरमियान परवाजों की तादाद हफ्तावार 29 हो जाएंगी। उन्होंने अबू ज़हबी से जिद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए कम लागत वाली परवाजों का तस्करा किया। कनाडा ने स्टडी परमिट एप्लीकेशन से मुतल्लिक अहम वजाहत जारी कर दी है। जनवरी 2024 में गैर मुल्की तलबा की इजाज़त नामी की दरख्वास्तों के लिए 2 साला इंटेक केप मुकर्रर कर दी गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस केप के साथ मंजूर शुदा मुतालियाती इजाज़त नामों की तादाद 2023 से 2024 तक 35% कम होकर तकरीबन 3,60,000 तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट सेकेंडरी सतह पर स्टडी परमिट के लिए दरख्वास्त देने वाले बैनुल अक़वामी तलबा की अक्सरियत को 22 जनवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे तक अपने आबाई शोबे या इलाके से सूबाई तस्दीकी खत पॉल जमा कराना होगा। पॉल PAL के बगैर दरख्वास्तें IRCC कनाडा की इमिग्रेशन, पनागज़ीन और शहरियत की एजेंसी के जरिए वापस की जाएंगी जब तक कि कोई इस्तिस्ना लागू न हो। मिलकर काम करते हुए क्यूबेक और क्यूबेक की वफाकी और सूबाई हुकूमतें बतौर PAL मुताले के लिए क्यूबेक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के इम्कानात को तलाश कर रही। 31 मार्च 2024 मौसूबों और खित्तों के लिए PAL जारी करने का मंसूबा रखने की आखिरी तारीख है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।